Assalamu alaikum. Hello, everybody. Assalamu alaikum. My first live, actually, since I've been back in Dallas. I got very busy with the move, with everything that we were doing. There was so much to get done. We had to buy cars, had to buy furniture, so many things. So I'm sorry I was not able to come live. But aaj mera ek seminar tha, and it finished today, just about half an hour ago. And then I was told that one of our videos is going viral. There's a lot of comments. People are saying a lot of things. It's triggering a lot of people, which I kind of expected, but itna zyada trigger karega ye nahi andaza tha. So I want to come and tell you, well, they're saying they cannot hear me. Can you guys hear me okay? Can somebody just comment? Let me know if you can hear me okay. Can you please comment? Let me know if you can hear me okay. Don't comment on my looks. Bhaijan, Nurul Saab, this is not a time to be Turkey. I'm not interested in that. Don't do that, please. They can't hear me, Natasha. They can't hear me. They're saying yes, we can. Oh, they can hear you. Okay, good. So people who cannot hear me, you have to, I think it's on your end, you have to turn the audio on. So thank you for those of you that commented. Thank you. So apparently my video, which was on the subject of, it's titled, Don't Tell Adult Women, Muslim Women, How to Dress, something like that, which was on, I do different layers of parda, and I ask you if you can hear me. और बड़ी clearly उसमें मैंने एक चीज़ कही है, बार-बार कही है, this is not meant to make fun of anyone, and yet people ask me, are you making fun of us? No, I am not trying to make fun. I'm trying to drive home a very important point. So let me break it down for you. Number one चीज़ तो ये है कि some people got concerned कि Eram, are you worried about what people think about you? Please don't worry about what people think about you. You keep doing what you're doing. So first of all, आप मुझे जानते नहीं है 3 साल से. अगर मैं वाकई, if I was someone worried about what people think about me, I would have changed a long time ago. Let me spell it out very clearly for all of you. I don't care what people think about me. I don't care what you think about me. If you love me and like me, thank you very much. Allah ki deen hai, main Allah ki शुक्रगुजार हूँ. If you hate me, doesn't bother me at all. आपकी मर्जी है करते रहे hate. मुझे फर्क नहीं पड़ता. I am also not that kind of an influencer who wanted to be an influencer. This was all organic, happened automatically. Allah की मर्जी थी, हो गया. कल को नहीं होगा, मैं नहीं रहूंगी famous, मुझे कोई मसला नहीं है. I am perfectly okay with it. Why I started doing it was because I want to speak passionately and truthfully and honestly and authentically about the things that are very dear to me. And that's what I do. So why did I make this video? Because I am sick and tired of this attitude of all people, men and women included, that think they have a right to tell women how to behave, how to dress, how to be, just because they do it in the name of Islam. And because मैं deal करती हूँ constantly, because I'm working for the empowerment of women, empowerment that comes from within, true strength with iman and connection with Allah Ta'ala. I deal with women constantly जो कि अपनी 40s, 50s में आ चुकी हैं, but they still act like they are little girls because they were never told, they were never raised with this idea that they have a brain that Allah Ta'ala has given them with which they can think and make their own decisions. They are told that they don't have the right to decide about their own life. हालांकि कुरान हमें clearly कहता है कि अल्लाह ने हर इंसान को autonomy के साथ पैदा किया है. हम सबको free will दी है. We have that right, which Allah has given us, and Allah Ta'ala does not interfere with that right. Yet we as Muslims feel we have the right to interfere with everybody's free will. हमें अल्लाह ने हक दिया हुआ है कि पहले हम जजमेंट करें, फिर हम जाके अगले को कहें कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और नाम हम इसको दे देते हैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर. वाह वाह वाह. Where did you read in the Quran that you have the right to judge? When you are judging someone and you're calling out someone and you're ostracizing someone, you are sitting in judgment on someone, you are committing a grave sin. अगला तो जो कर रहा है सो कर रहा है, अब अपने sin की बात करें. So why did I make this video? Because I am sick and tired of this notion that people think they have a right to tell women especially, but मर्दों के साथ भी ये होता है कि oh you need to dress in a certain way. मैं तो आपको clearly बता रही हूँ. I am not going to be fazed by your comments and I'm not going to change the way I am. मुझे आप लोगों ने अपनी with all due respect घिसी पिटी 3-4 अगर आपने translations पढ़ ली हैं,
या आपने अपने फिरके की तफसीर बड़ी अच्छी तरह आप जान गए हैं और आलिम या आलिमा भी बन चुके हैं, दैट इज द ओपिनियंस ऑफ योर फिरका. There are 72 firqas in Islam now. That was the point of the video. There are Muslim scholars that exist outside of Pakistan also. बहुत बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, और जहां पे बात औरत की सतर की आती है, जो कि आप समझते हैं कि आप अक्ले कुल हैं उसके ऊपर, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस विद इन टॉप स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम. सो प्लीज डोंट टेल मी कि मुझे अपनी थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए या मुझे कुरान पढ़ लेना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा हुआ है. ये पॉइंट नहीं था कि मैं पर्दा करूं या ना करूं. जो पॉइंट इस वीडियो में था कि अगर चले मैं आपकी बात मान भी लूं, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं कि आप अल्लाह का नाम ना लें और इस्लाम का नाम ना लें जब तक आप कवर्ड अप नहीं है. यानी ये जो मैं बातें कर रही हूं, जिनसे बहुत से इस वक्त तक मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स हैव वॉच्ड माय वीडियोस एंड दे हैव बेनिफिटेड. अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है. तो मैं फिर आपकी मर्जी के मुताबिक पहले आपको कंफर्टेबल करने के लिए आई नीड टू चेंज द वे आई अपीयर. सो हु शुड आई लिसन टू? दैट वाज द पॉइंट. क्योंकि आप लोग तो खुद अग्री नहीं करते. The hijabi girls who are very upset with my video, let me tell you my dears, आपके ऊपर भी लोग satisfied नहीं है. Go and try to be a social influencer like there are many social influencers who are hijabi girls and they get constant flack. उनके comments जाके पढ़ें, उनको लोग कह रहे होते हैं you have no right to be on social media because your face is showing. Makeup ना करके आए ये अरे मैं तो वो भी जानती हूँ, क्योंकि मैं तो बचपन से ये फाइट कर रही हूँ. जब डॉक्टर फरहत हाशमी शुरू में अल हुदा बना था और उनकी वीडियोस उनकी ऑडियोज आना शुरू हुई थी, ऑडियोज के ऊपर भी लोगों को एतराज था कि गैर महरम औरत की आवाज मर्द सुन रहे हैं. और वो जब वीडियो पे आती थी, फुल निकाब में आती थी, फिर भी उनके ऊपर एतराज होता था. भाई कोई एक अच्छा काम कर रहा है, कोई किसी की बेहतरी के लिए कुछ कर रहा है, कोई दीन की खिदमत कर रहा है, उसको करने दे. टांगे क्यों आप लोग खींचते हैं? किसी को काम नहीं करने देना. बस अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के आपने फोर्स करना है कि जिस बॉक्स में मैं फिट आती हूँ या मैं फिट आता हूँ, उसी बॉक्स में आप भी फिट आएंगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं. आई मीन कम ऑन, गेट ओवर इट. सो द होल कॉन्सेप्ट, द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो वाज दैट first of all, stop treating Muslim women as if they are little girls who do not have the brain to think for themselves. I happen to have a brain and I have always used it in my life. So, मैं तो आपकी ना बातों पे ध्यान देती हूँ ना मुझे असर पड़ता है, frankly speaking. This video was for those women who I deal with, who are so hurt, who feel rejected by Islam, because they are constantly told that you are not a good Muslim unless you do hijab, unless you do this, unless you do that. कौन होते हैं आप ये कहने वाले? आपको अल्लाह ने कहा है. अगर वो खातून आपके कमेंट की वजह से अल्लाह से डिस्कनेक्ट हो गई, उसका हिसाब रोजे कयामत कौन देगा फिर? मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. I have shared it before. When I was going through a divorce, it was extremely painful for me. और मैंने एक दिन सोचा कि आज जुमे का दिन है, I will go to the mosque and I will pray to Allah Ta'ala. I will ask Him for help. मैं उस वक्त इस्लाम के बारे में इतनी पैशनेट नहीं थी. मेरा tumultuous relationship था with Allah Ta'ala and Islam. But उस दिन चूंकि तकलीफ में थी, so I went to the mosque. And I went into sajda, and उस वक्त अल्लाह के साथ दिल जुड़ गया और मैं बुरी तरह से रो रही थी उस वक्त. In sajda I was crying because I had faced abuse and I was in a lot of hardship. So I was crying to Allah Ta'ala. And उस वक्त मैं connected थी अल्लाह से बहुत सालों के बाद. और मेरे शोल्डर पे किसी ने टैप किया उस वक्त, मैंने देखा और आंखों से मेरे आंसू जा रही हैं. और वो खातून, शी वॉज एन अरब लेडी बिकॉज आई वॉज इन डैलस, अपने वो अबाया में थी और वो सब कुछ. एंड शी सेड टू मी, सिस्टर योर प्रेयर इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज यू वेयरिंग नेल पॉलिश. आप सोचे उस वक्त इस बुरी तरह से मेरा दिल टूटा, बिकॉज इन द स्टेट दैट आई वॉज इन, आई डिडंट हैव इनफ नॉलेज एट दैट टाइम. आई फेल्ट अल्लाह वॉज रिजेक्टिंग मी, आई फेल्ट इस्लाम इज रिजेक्टिंग मी. And I got up and I left the mosque. और उसके बाद आज तक मैं उस मॉस्क में दोबारा नहीं जा सकी हूँ. मैं उस मॉस्क के ऊपर मेरी नजर पड़ती थी और मेरे अंदर दिल में तकलीफ होती थी, because I felt rejected by Allah Ta'ala and I felt rejected by Islam. Later on, much later, I realized that that lady was so wrong. और वो इतने साल जो मैं disconnected रही इस्लाम से, उसका हिसाब कौन देगा? उस वक्त अगर वो काइंडनेस से मेरे साथ बैठ के बात करती कि You are crying so much, Allah is with you, don't worry. कोई ऐसी बात कर देती नहीं. She had to do amar bil maroof and nahi anil munkar, which at that time she only realized was कि इसको बता दो nail polish लगाई हुई है, नमाज तो कबूल नहीं होगी. यार कौन लोग हैं आप लोग? How can you be so hurtful?
When a person is in pain, they want to connect with Allah. This is what I do in my talks. I tell people कि आप जिस हालत में हैं, आप जो भी हैं, गुनाहगार हैं, जैसे भी हैं, Allah loves you. Come back to Allah Ta'ala. That's my message. क्योंकि here's the truth. कौन है हम में से perfect? अगर आपको मेरा ये हुलिया बॉदर करता है क्योंकि मैं अल्लाह की बातें कर रही हूँ, but hey, I look like an imperfect Muslim, तो guess what? I'm telling you the truth. I refuse to be inauthentic. I'm being authentic. I am an imperfect Muslim, which you are as well. If you are fooling yourself into thinking because you have taken a hijab or your women in your family take hijab or you have grown a beard, you are now a perfect Muslim, you are fooling yourself. None of us are. Till the day we die, we're not going to be perfect Muslims. We're all going to be on a journey. एक revert का मैंने comment इधर पढ़ा है, मेरा इतना दिल दुखा है. She's a revert and she said, I agree with this because I am a revert. So she came to Islam. She left the religion she was following. She came into Islam and people constantly tell her, you're not a good Muslim because, or you're not a Muslim yet because you don't do hijab. ये क्या तरीका है? Who are we to decide कौन मुसलमान है और कौन नहीं है? And who are we to decide कौन अच्छा मुसलमान है कौन नहीं है? ये तो अल्लाह ने सिर्फ हक अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिया था. तो फिर आपको किसने ये हक दे दिया कि आप लोगों को जाके बताएं कि वो अच्छे मुसलमान हैं या नहीं? How dare you? Who is going to be answerable for the pain and hurt that women feel who want to be close to Allah, who are passionate about Islam, but for whatever reason, they don't do hijab. Some of them say, I want to do hijab, but I'm not there yet. Some of us, like me, don't believe that they need to do hijab. So then what? Who are you to break their heart and say, कि नहीं, Allah doesn't love you? तो आप मुसलमान नहीं हैं. आपने अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करनी है ना, तो सबसे पहले अपनी जात पे कीजिए. सबसे पहले ये देखें कि अल्लाह ने आपको हक नहीं दिया किसी को जज करने का, अल्लाह ने आपको हक नहीं दिया किसी को हर्ट करने का. So why are you hurting people? This was my message कि number one, you do not have the right to tell an adult Muslim woman who has reached adulthood, who has a brain with which she can think, जिसको अल्लाह ने autonomy दी है. अल्लाह ने कहा दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, ये कुरान आपका कह रहा है. जब नहीं है तो नहीं है, उसके बाद बात खत्म हो जाती है. आप और मैं कुछ नहीं बोल सकते. So जब अल्लाह किसी को फ्री विल देता है कि अपनी अकल इस्तेमाल करो और उसके बाद वो करो जो तुम्हें सही लगता है और मेरे साथ अपना रिलेशनशिप रखो, हम नहीं आगे से बोल सकते. पर्सनल मामला है बंदे और अल्लाह का. So this was number one. Number two ये कि मुझे बताइए ना फिर, अगर मैं आपकी बात मान के तो मैं आपके सो कॉल्ड मुस्लिम वुमन के अटायर में आ जाती हूं, तो फिर वो कौन सा अटायर होगा भाई? ये बात तो मुझे कोई बता दे कि किस चीज पे हम अग्री करेंगे. क्योंकि हिजाब मैंने जो इस वीडियो में आपको करके दिखाया है, मजाका उड़ाने की बात नहीं थी. एक चीज कई दफा आपके मुंह पे रखने के लिए आपको बहुत शेक करके दिखानी पड़ती है, विच इज व्हाट आई डिड. इट गॉट योर अटेंशन कि मैं अगर हिजाब करूं, इज दैट गोइंग टू बी इनफ, या फिर निकाब करूं वो भी इनफ नहीं, क्योंकि फिर लोग कहेंगे आंखें दिख रही हैं, फिर आवाज भी, एंड में मेरा मुंह बंद करके मुझे जमीन में 4 फुट गाड़ दें आप. दिस इज व्हाट इज डन टू मुस्लिम women that want to stand up for their rights or that have a voice. I have a voice that Allah Ta'ala has given me. अब वही मेरी आवाज बंद कराना चाहे तो बंद होगी, वरना तो नहीं होगी. आप लोगों के कहने पे, आप लोगों की तकलीफ पे तो नहीं होगी. मेरी फाइट उन लोगों के साथ ही है जो एक मुसलमान औरत को ये भुला देते हैं कि अल्लाह ने उसको गॉड गिवन राइट दिया. शी हैज ऑटोनॉमी एंड शी हैज द राइट टू फर्स्ट रिसर्च एंड फाइंड आउट. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मुस्लिम वुमन टू फाइंड आउट कि अल्लाह आपसे क्या चाहता है. अपने फिरके को ब्लाइंडली मत फॉलो करें. आपको जो आपके स्कॉलर्स ने कहा है उसको मत फॉलो करें. Go and find out what your Allah wants from you. The most important thing to do is have that deep connection with Allah Ta'ala. ताकि आपकी जिंदगी में आसानी पैदा हो, ताकि आपकी जिंदगी में आपको जो दिल में इतना हिजान है, इतनी नफरत है, the reason why you are spewing hatred and anger is because you have it in your heart. हम अगले को वही देते हैं जो हमारे अंदर होता है. जिसके दिल में मोहब्बत होगी, काइंडनेस होगी, वो देगा ही अगले को वो चीज. आपके अंदर इतना गुस्सा और हेट्रेड क्यों है? Because you don't have that connection with Allah Ta'ala. I'm sorry. You can say it to me all day long. I cannot believe it. क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह होता है, उसके दिल में ऑटोमेटिकली अल्लाह की मखलूक के लिए मोहब्बत होती है, काइंडनेस होती है, रहम होता है. This is the sign of a Muslim. और एक चीज आपको ये भी कहती चलूं, पाकीज़गी का जो कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम में, उसको समझने की कोशिश करें. पाकीज़गी इज मेनली इन द हार्ट. दिल पाकीज़ा होगा तो फिर आपका हर एक्शन, आपकी हर चीज से पाकीज़गी नजर आएगी.
पाकीज़ा दिल में नफरत, गुस्सा, जजमेंट ये नहीं होता. So stop doing that, please. So this video, again, I'm sorry if it ruffled feathers. It was meant to ruffle feathers. It was meant to shake you so you would think. इसीलिए मैंने कहा था please watch the entire video, right? Watch the entire video because मैं जानती हूँ ना, मेरे पास हैं बहुत students इस वक्त. अल्लाह का एहसान है, बहुत सी students हैं. मेरी students में हिजाब वाली खवातीन भी हैं, शरी निकाब वाली खवातीन भी हैं, और वो खवातीन भी हैं जो बिल्कुल पर्दा नहीं करती. और हम सब के सब एक ही जर्नी पे हैं. रब के साथ कनेक्शन करना है, अल्लाह के साथ कनेक्शन करना है. और अल्लाह तो फरमाता है कि जिस हाल में हो, जहां भी हो, मेरे दरवाजे तो तुम्हारे लिए हर वक्त खुले हुए हैं. जो फिरौन को कह सकता है कि अगर वो मरने से पहले तौबा कर लेता तो मैं माफ कर देता, उस रहमान की रहमानियत को क्या चैलेंज करते आप? तो रब के बंदों को रब से जुदा मत करें. मैं आपका तरला वास्ता करती हूँ. दिस इज द बिगेस्ट जुल्म दैट यू कैन डू कि अल्लाह के बंदे को अल्लाह से जुदा कर दे. कोई ऐसी बात कह के जिसमें इतनी हार्श बात है, जैसे मैंने अपनी कमअक्ली में समझा था कि मुझे अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे इस्लाम ने रिजेक्ट कर दिया, और अगर मैं वापस ना आती इस्लाम की तरफ तो बताए उसका जिम्मेदार फिर कौन होता? वो खातून जिसने मुझे उस वक्त अपनी तरफ से तो नेकी का मैसेज दिया था, आखिरत के रोज वो कैसे उस बोझ को उठा पाती कि ये मेरी बंदी तुमने मुझसे जुदा कर दी. अब जाते जाते आपको एक हदीस सुनाती जाती हूँ. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और अल्लाह ताला कमी बेशी माफ करे, मैं आपको मफहूम बता रही हूँ, बहुत मशहूर हदीस है, यू कैन गूगल इट, कि जब अल्लाह ताला के पास उसका एक खोया हुआ बंदा वापस आता है, तो जो एक ऐसा बद्दू जिसका कैमल सहरा में उससे गुम हो गया, क्योंकि अगर कैमल किसी का बद्दू का सहरा में गुम हो जाए तो उसके लिए एक यकीनी और दर्दनाक मौत होती है फिर सहरा में. सो ऐसा बद्दू जिसका कैमल, घुमा हुआ कैमल अचानक वापस आ जाए, अनएक्सपेक्टेडली, अगेंस्ट होप वापस आ जाए, तो जो खुशी, जो रिलीफ उस बद्दू को दिल में फील होती है, अल्लाह का खोया हुआ बंदा जब अल्लाह की तरफ वापस आ जाए, अल्लाह को उससे कहीं ज्यादा खुशी महसूस होती है. सो मेरा गोल, मेरा पर्पस थ्रू माई वीडियोज हैज बिन कनेक्टिंग पीपल टू अल्लाह ताला. यू गो बैक एंड वॉच एनी ऑफ माई वीडियोज, इट इज ऑलवेज गोइंग टू एंड विद अल्लाह ताला. अल्लाह से कनेक्शन पैदा करें. तो मैंने देखा है मेरे कोर्सेज में, मे बी दे विल कम एंड कॉमेंट हियर, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह का बहुत एहसान है. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह. आई कैन नॉट टेक क्रेडिट फॉर दिस. मेरे कोर्सेज में दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिजल्ट्स वी गेट, that women, whichever walk of life they are from, I have even had आलिमा जो बाकायदा आलिमा का कोर्स कर चुकी हुई हैं, वो भी मेरे कोर्सेज में आई हुई हैं. ड्रामा आर्टिस्ट भी आई हुई हैं. हर वॉक ऑफ लाइफ से खवातीन आई हैं. और द नंबर वन रिजल्ट दैट इज रिपोर्टेड इज दैट आई नाउ हैव अ डीप कनेक्शन विद माई रब, विद माई ब्यूटिफुल लविंग रब, जिसको अब मैं बेस्ट फ्रेंड कहती हूँ. आगे मेरा क्या काम है? आगे रब की मर्जी और जैसे अपने बंदे को गाइड करे. मेरा बस ये काम होता है किसी तरह से इनका जो टूटा हुआ कनेक्शन है वो मैं दोबारा से जोड़ दूं. और आखिरी बात कि इस वक्त जो हमारी यूथ है, आपको अंदाजा नहीं है वो कितनी कंफ्यूज्ड है. खास तौर पे जो जरा एजुकेटेड हैं, जो कि बाहर की बातें भी सुन रहे हैं, जो कि बाहर रहते हैं, they are very confused about Islam because the rigidity and the ugliness that they see in the behavior of Muslims is not appealing to them and they think that is Islam. और मेरा काम होता है कि मैं constantly उनको कहती हूँ this rigidity and the ugliness of अखलाक is not Islam. इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है और इखलाकियात इस्लाम में बहुत ऊपर रखी जाती हैं. तो मुझे बताएं कि कहाँ का इखलाक है कि आप आके सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की आवाजें कसें और बातें करें और कहें कि ये काम बंद कर दें जब तक कि आप हिजाब नहीं लेती. भाई मैं तो बंद नहीं कर रही, मैं तो अभी से ही आपको बता रही हूँ, मैं तो बंद नहीं कर रही. ना ही मुझे परवाह है, आप जितना मर्जी बोलते रहे. मुझे दूसरी खवातीन के लिए दुख होता है जो इस तरह की चीजें पढ़ के और डर जाती हैं. तो मैं तो आपसे कह रही हूँ, ना मैं बंद करूंगी, ना मैंने चेंज होना है. अगर आपको मैं इतना डिस्कम्फर्ट दे रही हूँ, यू हैव फ्रीडम, यू कैन लीव माई पेज, डोंट वॉच माई वीडियोज. आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू, but don't tell other people how to behave and how not to behave. क्योंकि हम अगर अपने गिरबानों में देखें, हम सब एक जर्नी पे हैं, हम सब इम्परफेक्ट हैं. अल्लाह के पैगंबर परफेक्ट थे और उनसे भी गलतियां हुई. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहले बैत, वो परफेक्ट थे. उसके अलावा मुझे दिखा दें कौन परफेक्ट है. और अगर आप परफेक्ट हैं
तो मुझे जरूर बताइएगा, अपना एड्रेस और नाम पता जरूर बताइएगा, आपको जरूर मैं मिलना चाहूंगी, क्योंकि आपसे बड़ा काजिब कोई नहीं हो सकता, आपसे बड़ा कज़ाब कोई नहीं हो सकता, क्योंकि है ही नहीं परफेक्शन, बंदे में तो है ही नहीं, रब की जात परफेक्ट है बस। सो ये आपके साथ मैंने मैसेज शेयर करना था। बी अ लिटिल बिट more flexible, and whenever you have to choose between being right and being kind, always choose kindness. Okay, so this is my quick message to you guys. I thank all of those people who are supporting this video. Please share this message because ये बहुत important है। इसको ब्रेवली करेज के साथ शेयर करें। मैं बार बार कहती हूँ the rights of Muslim women, the way Islam brought the rights of Muslim women 1500 years ago, they were hijacked approximately 1000 years ago. आपको अंदाजा ही नहीं है कि इस्लाम में औरत के कितने शदीद स्ट्रॉन्ग राइट्स हैं, लेकिन ये फाइट हमारे लिए अब कोई और नहीं लड़ेगा। बहुत टाइम मैंने भी वेट किया कि स्कॉलर्स उठ के लड़ेंगे और ये नहीं, कोई नहीं लड़ेगा। आपको और मुझे खुद अपने खुदा के दिए हुए राइट्स के लिए फाइट करना पड़ेगा, और ये वो फाइट है, इसको जिहाद कहते हैं माय डियर, इसको दावा भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रू इस्लाम की बात हो रही है। मर गए इसमें तो क्या फर्क पड़ता है, शहीद हो जाएंगे, मरना तो एक दिन सबने है, तो अच्छी बात करते हुए मरें तो बेहतर है ना। और अगर मेरी वीडियो से कोई अल्लाह से डिसकनेक्टेड इंसान, कोई एक रूह अल्लाह के साथ वापस जुड़ गई, तो मेरी तो बख्शिश है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, जो इतना रहमान है, इतना प्यार करने वाला है, जिसको इतनी खुशी होगी कि उसका एक भटका हुआ बंदा वापस आ गया मेरे जैसी गुनाहगार औरत की वजह से, तो मैं तो अपने रब की बहुत मशकूर हूं इस वजह से। तो मैं तो चुप नहीं होंगी और ना ही मैं रुकूंगी। So thank you very much for watching. If you agree with me, please share this. If you disagree with me, I'm sorry. It was not meant to hurt anybody's feelings. I never make fun of anybody's choices. I make fun of those people who impose their will on other people. That is who I make fun of. And that is what this video was meant to show. Thank you. Lots of love. Allah Ta'ala आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ। खुदा हाफिज।